We have almost a handful number of people, so we won't wait anymore. My name is Misma. I'll be presenting with Teba and Umar, and let's move on. So today the discussion would be around empowering your digital presence with AI. It's a hands-on training for someone who is a beginner or who wants to host their uh, digital presence portfolios free of cost. So I'll move on quickly to the agenda. We'll introduce why it's important to have a digital presence in this day and age. The next 5 minutes, I'll be talking about a bit that AI prompts that can help us, and then further, Omar will be explaining it. Then we'll have 20 minutes with Tayeba, and she will explain the GitHub environment because we will be using GitHub and how we can host on GitHub our profiles. And then Umar will go forward and explain how we can improve the styling and prompting to get help from AI to improve our profiles. Then we will have a quick QA session and we'll wrap up today's workshop. Now I will share the IPIP. IPIP, Irish Pakistani ICT Professionals. An open access platform for present and future Irish Pakistani ICT professionals. Professional and social networking. Information and training seminars. Career guidance events. Upskilling sessions. Community get-togethers. We'll move on to the next one, which I'll be presenting, that why is digital portfolio important in this time and age. This is really important as we have very saturation in our own industry, showcasing our skills and achievements. This also builds the credibility in regards to that you are in up to the new environments and digitally ready. It also helps you reach out to global audiences because you have not just a web presence, say in some like you have like LinkedIn or any application. If you go in and then you have your profile, it has a more global reach. It enhances your job application in regards to that you are a sound person in regards to the GitHub professional presence. And so that's why we thought about giving a presentation that we all should be technically very sound and we are very like professionals. So we should be having some place where we can have our digital presence that can show our skills much better, and whatever we want to show and represent, we can in our digital portfolio. And why it is important, because in Ireland you have a lot of good international companies there, and to stand out in those as a professional, this can really help. And it also highlights that how you can use different portals and platforms to represent and make your own self brand. And this is really helpful for someone who is a freelancer or contract workers, which is also very much trendy in Ireland, that high achieving professionals go for consultancies in Ireland and contract workers. So Deva has her own on GitHub. And then there's Mr. Umar that has his profile too. This is Mr. Umar's profile on GitHub. He has his own projects and Wall of Fame and his projects and experiences. So it gives the whole personal flavor to your own portfolio. And then I'll share.
Assalamualaikum everyone, thank you this here. I'm a data analyst by profession, and let's move on with the things we are going to learn in these sessions. Actually, GitHub जो है या आपका जो personal portfolio है, it's very necessary to have it. Why? Because it's a collection of your skills, your services, your everything you have done in your professional life. For example, when you started, you just have a CV format. Like CV format में क्या होता है कि आपके पास सिर्फ लिखा हुआ होता है कि आप करते क्या हैं, और देन आपकी जितनी भी वो स्किल्स होती हैं वो होती हैं, और देखिए वो एक वर्बल होती है. वो रीजन फॉर डू यू हैव योर ओन वेबसाइट, जो यूजुअली क्वेश्चंस आपके सामने रोज होते हैं वो ये होते हैं कि डू यू हैव एनी पोर्टफोलियो, डू यू हैव एनी वेबसाइट टू शोकेस योर स्किल्स और शोकेस योर एनी काइंड ऑफ सर्विसेज यू हैव प्रोवाइडेड टू दैट पर्टिकुलर क्लाइंट और टू दैट एनी पर्टिकुलर पर्सन यू आर ट्राइंग टू से कि अच्छा आपने एक्सपीरियंस गेन किया है. ओके फाइन. फॉर एग्जांपल, we can say that you have done work with the you have provided your services to the Microsoft. Let's say you have provided your services to the Google, you have provided your services to the Meta or anything like big companies or big firms. तो वो आपसे पहले पूछते हैं कि ओके आपने यहाँ पे, पहले तो आपसे वर्बली सवाल करते हैं कि आपने यहाँ पे किया क्या है. वहां पे जो आपका प्लस पॉइंट होता है कि आप सामने वाले को क्या चीज, कि वो इससे पहले कि वो आपसे ये सवाल करे कि आपने अ, जो है वो क्या किया हुआ है, आपका क्या उसकी सोल्यूशन, मतलब क्या विजुअलाइजेशन है, तो आप उनको अपना पोर्टफोलियो निकाल के दे देते हैं. So portfolio is a very big sum or big plus in your professional life. So let me share my screen and we'll show you from the scratch कि हम लोग किस तरीके से GitHub को यूज कर सकते हैं for the portfolios, and then we can move on. Let me know when my screen is shared. ठीक हो गया, screen is quite shared. सबसे पहले तो आपने जाके यहाँ पे GitHub का अकाउंट बना लेना है. लॉगिन करते हैं. इफ यू डोंट हैव एनी GitHub अकाउंट देन व्हाट यू कैन डू इज टू साइन अप. मैं स्क्रैच से बताती हूँ कि सिंस वी हैव सम ऑफ और attendees who doesn't have their account, तो क्या होता है कि ये आप GitHub पे आते हैं. GitHub आपको इस तरीके से दो चीजें दिखाते हैं, whether you want to sign in or sign up. Sign up क्या होता है कि आप अपने आप को न्यू लेके आते हैं, बट इफ यू हैव ऑलरेडी योर अकाउंट देन यू गो टू द साइन इन ऑप्शन. मैं साइन इन पे जाती हूँ. मुझे ये बताता है कि आप, मतलब इफ लाइक आई डू हैव एन अकाउंट सो आई विल गो फॉर दिस वन एंड यस आई विल साइन इन. ये आपको इस तरह के पेज पे ले आता है. एनालिस्ट बना देते हैं, डाटा एनालिस्ट मिसबा. ठीक हो गया. ये आपका एक रेपोजिटरी का नाम बन गया, और यू मेक श्योर कि ये आपकी पब्लिक हो. पब्लिक हो कि जब भी कोई बंदा इसको अप्रोच करे तो उसको पहले वो ना देखना पड़े, उसको ब्लैंक पेज ना देखना पड़े, या उसको ये ना देखना पड़े सॉरी यू कांट एक्सेस दिस पेज. सो यू हैव टू मेक श्योर योर अकाउंट इज सॉरी योर रेपोजिटरी इज पब्लिक. रेपोजिटरी जनरेट होगी, ये आपको एक न्यू इस तरह की चीज पे लेके आ जाएगा. ठीक हो गया. अब यहाँ पे आपके पास पेज खुल जाता है, whether you want to create a new file or upload an existing file. अच्छा, अब इसमें क्या डिफरेंस होता है कि since everyone here knows a GitHub account or how to use a GitHub account, so usually जो हमारे पास कोड एडिटर्स होते हैं, विजुअल कोड एडिटर होता है, आप वहाँ पे पहले अपना कोड लिखते हैं and then you paste then you upload the file here. ठीक है. That's also a usage, but what we can do कि अभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग GitHub के अंदर किस तरीके से फाइल जनरेट कर सकते हैं. एक हम लोग ले लेते हैं GitHub वाली. अब यहाँ पे मैं जो है वो एक टेम्पलेट यूज कर रही हूँ, सिंपल टेम्पलेट यूज कर रही हूँ कि उसके अंदर अभी कुछ भी मैंने एडिशन नहीं की हुई. इट इज जस्ट अ कोड कि उसके अंदर आप बाद में जो है वो एडिटिंग कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे, मैं चूंकि HTML की यहाँ पे फाइल बनाऊंगी, क्योंकि आपकी जो पोर्टफोलियो होता है विजुअलाइजेशन पे जब आप काम करते हैं तो यू हैव टू यूज like there are many other graphic design tools also, but since we are going to use GitHub, so core is a basically. So Visual Studio में आप इंडेक्स की एक फाइल बनाते हैं. some changes. जी बिल्कुल. क्रिएट इंडेक्स नहीं, सिर्फ इंडेक्स बनाना. इंडेक्स की आपके पास फाइल बन गई. ठीक है. अब मैंने इसको खोला, यहाँ पे कोड पे गई, और इसको मैं रिसीव. अच्छा ओके. एडिट दिस वन. यस, यहाँ पे मैंने एडिट कर दिया. अब मेरे पास ना एक कोड पड़ा हुआ इंडेक्स का. व्हाट आई कैन डू, आई विल कॉपी दिस एंड आई विल राइट दिस कोड हियर. ठीक हो गया. यहाँ पे हो गया. अब मैंने यहाँ पे इसको बोल दिया कमिट दिस चेंज, कमिट न्यू ब्रांच, कमिट डायरेक्टली डूइंग. आपने मेन करना है. ठीक है. क्रिएट इनिशियल पोर्टफोलियो HTML स्ट्रक्चर कर दें, इसी तरीके से कर दें. नहीं जी, हमारी पहली फाइल बन गई. अब हम दोबारा जाएंगे इस फाइल के अंदर. अब मेरे पास ये एक फाइल मौजूद आ गई इंडेक्स की, आ सकते हैं तो वो कैसे लेके आ सकते हैं. एक फाइल हम लोग अपलोड भी कर लेते हैं, दिस वन. सो व्हाट वी कैन डू, वी विल ड्रैग इट हियर और चूज इट. हमारी हो गई है. अब आप नीचे आके कमिट कर देना इसको. ठीक हो गया. अब हमारे पास इंडेक्स फाइल भी आ गई है, स्टाइल भी आ गया है. नाउ वी आर गोना लुक हाउ योर पेजेस विल लुक लाइक. आपने सेम रेपोजिटरी की सेटिंग्स में जाना है, कहीं और नहीं जाना. सेटिंग्स में जाना है. यहाँ पे आपने अपना नाम चेक किया, यस इट्स प्रीटी गुड, इट्स गुड टू गो. यहाँ पे मेन आना चाहिए, बिल्कुल मेन ही है. अब आप आ जाएं पेजेस के अंदर. पेजेस में जाके आपने कहना है कि इसको सेव कर. सिंपल. 1 मिनट 2 मिनट आपने रुकना है. आपका जो है वो यहाँ पे एक लिंक आ जाएगा
कि हाउ योर यहाँ पे वो आपको एक लिंक जनरेट करवा के देगा कि आपकी वेबसाइट कैसे दिखेगी। एक सेकेंड मेरे साथ वेट कर लें इसका। मेरे ख्याल में गिटहब जो है वो इट्स अ वेरी बेसिक और वेरी बिगिनर फ्रेंडली टूल यू कैन यूज फॉर योर पोर्टफोलियो। व्हाई? बिकॉज इट्स इजी टू डिप्लॉय एंड इट्स इजी कि आप आते हैं और आपके गिटहब के अंदर ही आप अगर कोई चेंजिंग्स वगैरह कमिट करना चाह रहे हैं तो आप अपनी फाइल के अंदर चेंजिंग्स करते हैं और वो ऑटोमेटिकली आपके रेपोजिटरी में रिफ्लेक्ट हो जाती है। और सिंस आपकी रेपोजिटरी ही डिप्लॉय हुई होती है, आपकी रेपोजिटरी ही आ रही होती है, सो वो ही शो होती है। लें जी, ये आपके पास इसका लिंक जनरेट हो जाता है। विजिट साइट करेंगे तो आपके पास एक आपकी साइट का वो आ गया है। ठीक हो गया। लाइक यू कैन सी के हाउ मच ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन वी हैव यूज्ड। सो ये टेम्पलेट आप यूज कर सकते हैं अपने वो पोर्टफोलियो के लिए और यू कैन जस्ट हैव टू एडिट एड के यहाँ पे आपका नाम क्या है, आप वेब डेवलपर हैं या क्या चीज़ है। हायर मी में एक बटन यूज हो रहा है तो वो आपको जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको कॉन्टैक्ट पे ले जाएगा और आपकी क्या सर्विसेज हैं। इफ यू वांट टू ऐड सम अदर सेक्शंस आल्सो तो आप अपने सिर्फ गिटहब पे कोड पे जाके आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं और आप जो है वो सिंपली जो भी आपकी चेंजेस कमिट हुई होंगी जैसे जैसे आप उसको साथ साथ कमिट करते जाएंगे योर पेजेस विल बी अपलोडेड और अपडेटेड ऑटोमेटिकली। Yes. So that's how we can use GitHub for your portfolios. And like you can add as much as files you want to add in it. Or इसमें एक चीज़ ये भी है कि if you want to make it animated or something else, for example, you have to add pictures of your certifications or just like I have uploaded कि links भी आप generate कर सकते हैं कि for example सिर्फ ये नहीं बताना कि आपने किया क्या है कि for example आप कहते हैं कि मैंने फलाने प्रोजेक्ट में फलाना काम किया है तो आप प्रोजेक्ट वो आपसे पूछेंगे कि अच्छा आपने ये प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है दिखाओ हमें कहाँ पे बनाया। सो यू कैन ऐड अ रेफरेंस link for it, you can add a picture of it, or you can add like there are many things like many other tools hosted for your portfolios. Like for example, in data analytics we have a Maven Analytics जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट्स वो अपलोड करते हैं उनकी सारी डिटेल्स होती हैं। एक वो साइट होती है उसके अंदर क्या होता है कि आपने जैसे ये प्रोजेक्ट अपलोड किया उसका एक लिंक जनरेट हो जाता है। अब वो पूरा एक पेज उस एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को डिफाइन कर रहा होता है। आप सिंपल वो रादर देन कि आप अपने ये इन कोड के अंदर जाके एक एक चीज लिखें तो आप एक रेफरेंस लिंक उसका बना सकते हैं जहाँ पे उसकी एक पूरी डिटेल बनी हुई है। फॉर एग्जांपल आप उसके अंदर ये भी लिख सकते हैं कि आपने प्रोजेक्ट बनाया हाउ टू प्रेडिक्ट फॉरकास्ट, ठीक है फॉरकास्ट एनालिसिस के अंदर आपने ये फॉरकास्टिंग प्रेडिक्शन आपने परफॉर्म की है तो उसकी कुछ फाइल्स होंगी, कुछ पिक्चर्स होंगी, उसकी कुछ विजुअलाइजेशन होगी। यूजुअली जो फॉरकास्टिंग होती है वो आप पाइथन के अंदर होती है तो उसकी एक फाइल होती है दैट्स इट। या कुछ पिक्चर्स हो सकती हैं या कुछ ऐसे इंसाइट्स हो सकते हैं जिनको आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो आप उसकी रेपोजिटरी यहाँ पे बना सकते हैं। अब उस रेपोजिटरी का एक लिंक जो ऊपर आपके पास गिटहब के अंदर आया होगा आप उस लिंक को भी अपने वो रेफरेंस लिंक के अंदर जिसको जैसे ही सिलेक्ट करे वो जैसे ही उस प्रोजेक्ट पे जाए तो वो उसको सिलेक्ट करेगा तो वो ऑटोमेटिकली आपको अपनी आपकी जो गिटहब रेपोजिटरी है तो um, उस पे ले जाएगा और लाइक पीपल कैन फॉलो योर repository, download the files if you have some, like so we can go ahead with this one. Yes, that's it from my side. आगे उमर जो है वो कंटिन्यू करेंगे कि हाउ यू कैन यूज एआई टू पावर अप योर पोर्टफोलियो। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है अभी तक यहाँ तक आपको सारों को इतनी समझ आ गई होगी कि किस तरह एक अपनी पोर्टफोलियो को डिप्लॉय करना है, पेज को लाइव बनाना है, कोई भी एक्सेस कर सके और गिटहब के ज़रिए, और जो कि एक फ्री टूल भी है, इसमें कोई मतलब डोमेन लेने की ज़रूरत नहीं भी है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊँगा कि किस तरह आप एआई के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं डिज़ाइन। जो अभी अभी कुछ मिनट्स पहले तरीबा बाजी ने बताया कि जो उन्होंने कोड लेके वो चली थी, मैं उसी कोड को ही लेके चलूँगा और आपको बताऊँगा कि किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं डिज़ाइन एंड लुक एंड फील वगैरह। अच्छा, अब इसके लिए डिफरेंट टूल्स हैं। बेशक आप chatgpt.com पे खोल लें, यहाँ पर आप कोड को चेंज करें और फिर आप अपलोड कर दें उसमें। अब ये इस कोड को आप यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं और फिर यही कोड आप जाके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं गिटहब की जो जो भी आपने रेपो बनाई हुई है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मैंने ये वाला सारा कोड मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है अपने IDE में, जहाँ पर मैं कोड को चेंज करता होता हूँ, तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। कर्सर पे आप जाके कुछ भी लिख सकते हैं कि इसमें मेरा नाम चेंज कर दो। तो वो खुद से ही कोड की फाइल को जो होगा वो चेंज करेगा, कोड को चेंज करेगा। कोड को आपने समझना हो वो भी आपको समझा देगा। अब ये देखें, इसने खुद ही चेंजेस कर दिए। उसने बताया कि रेड जो लाइन है उसको रिमूव करके उसने ऐड कर दिया उमर, और ये मैंने साथ ही लाइव ओपन किया हुआ है। जो भी चेंजेस होती हैं मुझे साथ नज़र आ जाती हैं, ठीक है। ये एक तरीका है। अगर आपने ये फाइल आप इसको ब्राउज़र में भी ओपन करके रख सकते हैं इस तरह करके, ठीक है। तो आप एक जगह पे चेंजेस करें, इस तरह आप 2 विंडोज़ खोल लें, एक जगह पे चेंजेस करें और दूसरी जगह पे आपको वो चीज़ नज़र आ जाएगी। ठीक है, जैसे मैं अभी चेंज करूँगा यहाँ पर, तो
तो यहाँ से एक दफ़ा रिफ्रेश करना पड़ेगा मुझे। तो देखें अबाउट उमर आ गया। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि इसको यही जो टेम्पलेट था जो हम लेके चले हैं जिसमें अभी ज़्यादा डाटा नहीं है, एक जस्ट टेम्पलेट है, तो उसी को हम फिल करेंगे, ठीक है। अब हम बेशक आप कर्सर डाउनलोड कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री है और इसका फ्री टियर भी है। मैंने ये इसकी सब्सक्रिप्शन ली हुई है जो कि $17 की है, 17 यूरो की। तो अगर आपने पेड नहीं लेना तो फ्री टियर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप प्रोजेक्ट खोलें और उसमें चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं। उसके अलावा आप chatgpt.com पे जाएँ, यहाँ पर आप वही सारा कोड लिखें, कॉपी किया, एक नई चैट बनाई, ये ऐसे ऐड कर दी। आप इसमें कहो कि आप इसमें कह सकते हो कि यार प्लीज़ ऐड दीज़ प्रोजेक्ट्स डिटेल्स। आपको पता है कि इसमें वो नहीं डले हुए, प्रोजेक्ट्स नहीं डले हुए, तो आप कह दो कि यार ये प्रोजेक्ट्स हैं। मैं 2-3 जो अपने ही मेरे प्रोजेक्ट्स हैं ना, उसको खोल के उसका डाटा इसमें डाल देता हूँ। दोबारा आगे हो सकता है। अच्छा, अब ये भी आपको सारा कोड दे देगा। अब आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करके आप गिटहब में सेव कर दो। ठीक है, यहाँ से आप सारा कॉपी कर लें कोड को। अगर आपने लोकल ये चेक करना है कोड, तो आप जो लोकल आपने फ़ाइल खोली है उसको एक दफ़ा कॉपी पेस्ट करें और फ़ाइल को एक दफ़ा रिफ्रेश करें, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो मैंने की है डिप्लॉय अपनी एक डेमो के लिए, तो ये उसका लेआउट है अभी, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि इसको मैंने अपडेट करना है। कोड में जाऊँगा मैं और एचटीएमएल में चेंज करना है। सीएसएस फाइल होती है जो कि डिज़ाइनिंग से रिलेटेड होती है। आपने उसमें चेंजेस करने हैं, आप वो फाइल खोल लें। अगर आपने एचटीएमएल में कंटेंट में चेंज करना है, तो आप वो कर लें। अब जो मेरी वेबसाइट है, ये जो मैंने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, वो भी गिटहब पे ही है और वो वन पेज एचटीएमएल ही है, एचटीएमएल के साथ डिज़ाइनिंग है। ठीक है? ये नहीं कि आपको पूरी ऐप कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आप एचटीएमएल फाइल बना के उसके साथ डिज़ाइनिंग कर देंगे, तो वो भी मोर देन इनफ होता है। ठीक है? साथ मैंने लिंक्स वगैरह लगाई हुई हैं, तस्वीरें कुछ लगाई हैं, ये देखें। तो ये इस तरह आप कर सकते हो। तो एचटीएमएल पेज इज़ मोर देन इनफ। तो अब ये मैंने एचटीएमएल फ़ाइल खोली, इसके यहाँ पर मैं कोपायलट एक माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है जिसके थ्रू जो कि चैटजीपीटी जैसा ही है, आप यही समझ लो कोई। इस पे क्लिक करेंगे। अब मैं इसको कहूँगा कि ये जो मेरे प्रोजेक्ट्स की डिटेल थी ना, वो डाल दो इसके अंदर, इस कोड के अंदर। ठीक है? ये फ़ाइल ये आपको नज़र आ रहा होगा index.html। इसका मतलब ये है कि ये फ़ाइल पे ही अभी इस फ़ाइल को हमने एज़ अ कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है और हम इस फ़ाइल की बेस पे हम बात कर रहे हैं कि चेंजेज़ जो भी बना करना वो इस फ़ाइल में करना। तो मैंने इसे कह दिया कि ये सारा ये जो मेरे प्रोजेक्ट्स की डिटेल है ना, ये आप डाल दो इसके अंदर, ठीक है? अब वो खुद ही करेगा फ़ाइल को चेंज और फ़ाइल के अंदर डाटा डाल देगा। अच्छा, पहले आपने देखा होगा कि वो उसकी जो लुक एंड फ़ील थी ना, वो ये थी। अब मैं इसे कहता हूँ कि ब्लैक एंड व्हाइट ही रखे लुक एंड फ़ील इसकी। देख लेते हैं कि अब ये सिर्फ़ index.html में चेंजेज़ करता है या दूसरी जो फ़ाइल है हमारे पास डिज़ाइन फ़ाइल वो भी उसको भी एक्सेस करके चेंज कर सकता है या नहीं। अच्छा, ये इसने सारी चीज़ें चेंजेज़ कर दी हैं। अब अच्छा मैंने क्या किया हुआ था, हाँ, हाँ, ठीक है। अब उसने सीएसएस जो भी डिज़ाइनिंग है ना, वो भी इसी फ़ाइल के अंदर लिख दिया, जो कि कोई मसला नहीं है। अलग फ़ाइल भी बना सकते हैं। इसको बस अलाउ कर देना आपने कि ये चेंजेज़ कर दो। अच्छा, अब इसमें कोशिश ये किए क करिएगा कि जितनी भी फ़ाइल्स हैं ना, वो अलग-अलग स्ट्रक्चर के साथ बनाएँ। अब डिज़ाइन फ़ाइल है, वो अलग बनाएँ और जो कंटेंट की फ़ाइल है एचटीएमएल की, वो अलग बनाएँ, ताकि जब भी आप चेंजेज़ करें, तो उसको सारी फ़ाइल रीड एक साथ ना करनी पड़े। उसको सिर्फ़ वो वाला कॉन्टेक्स्ट देना बेहतर है, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट और इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी भी, कि वो अच्छा रिज़ल्ट प्रोड्यूस करते हैं जब उसको छोटी फ़ाइल्स दो और उसको वही दो, जो उसने चीज़ को चेंज करना है। ये नहीं कि आप कोई और बाकी फ़ाइल्स भी एक साथ दे दो। तो इसमें बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप डिफरेंट फ़ाइल्स बनाओ और उसको बिल्कुल ब्रेक डाउन करके काम करो। अच्छा, ये देखें, ये फिर उसने देखें लुक एंड फ़ील भी चेंज कर दिया। अभी पहले हमने हमारी वो ब्लू कलर की स्कीम थी और ये उसने प्रोजेक्ट्स भी ऐड कर दिए, ठीक है? और एक लाइब्रेरी होती है यूआई लाइब्रेरी जिससे हम बड़ी अच्छी वेबसाइट्स बना सकते हैं, चैट जीपीटी टाइप लुक।
ये देखें, ये इस तरह की लुक ब्लैक एंड वाइट, तो वो मैंने उसको नाम दे दिया था। मैंने कहा यार शेड सीएन एक लाइब्रेरी है, उस तरह टाइप की ना मुझे लुक एंड फील मेरी वेबसाइट की चाहिए, तो वो उसने बिल्कुल वैसी कर दिया, ये ब्लैक एंड वाइट टाइप। तो आजकल मॉडर्न वेबसाइट इसी तरह की हैं यूआई। तो इसी तरह अब ये उसने चेंजेस कर दी, हमने उसने पुश भी कर दिया मेन ब्रांच में, और यहाँ पर हमें रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब यही चीज़ आप यही वाला काम इसी को दोहरा सकते हैं कि हाँ ये वाला ऐड भी कर दो, कलर चेंज कर दो, बैकग्राउंड चेंज कर दो, प्रोजेक्ट्स ये और डाल दो। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं कि डिफरेंट एक पेज बना दो, सर्विसेज का कॉन्टैक्ट का अलग बना दो। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं। तो अगर आपने इधर नहीं करना या आपको स्लो लग रहा है या मुश्किल है गिटहब, तो आप लोकल चेंजेस करो और उसको कॉपी पेस्ट कर दो। वो सारा कोड को चेंज करो और कॉपी पेस्ट कर दो, जाके गिटहब की फाइल के अंदर डाल दो कोड। अब देखें यहाँ पर जिस तरह मैं इसे कहता हूँ, कर्सर को मैं कहता हूँ कि अच्छा, अब हम इसको ना तस्वीर भी दे सकते हैं कि यार ये तस्वीर है, हमें कोई इस तरह का डिज़ाइन चाहिए। मैंने कुछ फाइल्स खोली हैं, कुछ मोटिवेशन के लिए, इंस्पिरेशन के लिए, कुछ डिज़ाइन मतलब वेबसाइट, पोर्टफोलियो वेबसाइट के डिज़ाइंस खोले हैं। एक ये है, एक ये है, ठीक है, एक ये है शेड सी एन टाइप ब्लैक एंड वाइट सा, और ये है। ठीक है, तो ये सारे हैं। अब मैं कहता हूँ कि यार मुझे इस तरह की ना अ, इस तरह की लुक एंड फील चेंज कर दो। मैं उसको सिर्फ तस्वीर देता हूँ, स्क्रीनशॉट खींचूंगा और पहले इसको देख लेते हैं कि ये भी कर सकता है या फिर नहीं। को पायलट, अब मैंने इमेज जो है वो सिर्फ कॉपी पेस्ट ही किया। मुझे कहता हूँ आई वांट दिस टाइप डिज़ाइन। अब वो इसी तरह का वो कोड से तस्वीर से समझ आएगा कि इसकी कि किस तरह ये दिख रही है, क्या डिज़ाइन है, और उसका वो कोड खुद ही बना के दे देगा आपको। कर्सर पे भी आपको करके दिखाता हूँ मैं। ये मैंने एक इमेज पेस्ट कर दी। सिंपल आप आसान लफ्ज़ों में भी कह सकते हैं, आपको बहुत टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं भी है। अब ये इसका एजेंट मोड है। एजेंट मोड ये होता है कि आपको वो फाइलें खुद ही चेंज कर देता है, खुद ही फाइल्स भी बनाता है। आस्क मोड भी है कि आप चीज़ें सिर्फ़ कोड की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने कोई चीज़ पूछनी है कि ये किस तरह करना है और क्या। प्लानिंग मोड भी है। अब ये मैंने 2 अलग-अलग फाइल्स बनाई हैं कि ये सीएसएस की फाइल है, जिसमें डिज़ाइनिंग होती है ज़्यादातर, और ये कंटेंट है एचटीएमएल का कि उसमें दिखेगा क्या। तो अब देखना वो सीएसएस को ज़्यादातर चेंज करेगा। अब ये देखना कितना तेज़ भी होगा। ये अभी वर्क कर रहा है। अब उसने टू डूज़ भी बना लिए और उसने फाइलें चेंज करने लग गया। अब ये कंटेंट चेंज कर रहा है एचटीएमएल, और अभी सीएसएस भी चेंज कर देगा। उसकी ये देखें सीएसएस चेंज कर रहा है। अच्छा, अब देखें ये मैंने एचटीएमएल फाइल बनाई हुई थी, इसको मैं खोलूँगा कि हाँ, यहाँ पर पड़ी है। अब मैं कहूँगा कि यार ये ज़रा ना ब्राउज़र में खोलना है, मैंने चेंजेस देखनी है। तो ये देखें उसने चेंजेस कर भी दिए हैं और मुझे नज़र आ गया। आप रिफ्रेश करके बार-बार देख सकते हैं, ठीक है? ये उसने लुक एंड फील देखें बिल्कुल वैसे ही कर दिया। तो अब तस्वीर देख के सिर्फ़ तस्वीर से भी आप कोड की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और चीज़ें बना सकते हैं। तो ये देखें रेड लाइन्स बता रही हैं कि उसने ये कोड डिलीट किया। ये उसने सारा कोड लिखा है। सीएसएस सारी उसने चेंज कर दी है, इसका मतलब ये हुआ। ये इसने नेक्स्ट लाइन्स डिलीट की हैं और थोड़ा-सा उसने डिज़ाइनिंग चेंज किया। तो ऐसे अब यही इधर आप कीप कर लें कि हाँ, सारा कोड मुझे पसंद है। तो अब यही सारा कॉपी करके आप गिटहब पे जाएँ और को पेस्ट भी कर सकते हैं। अब ज़रा कोपायलट पे जाते हैं कि उसने चेंजेस किए हैं या नहीं। अच्छा, उसने भी कर दिया। सिर्फ अलाउ करना है आपने। अच्छा, आप इसके अलावा अब अभी हमने गिटहब पे डिप्लॉय किया है, इसके अलावा हम कर सकते हैं क्लाउडफ्लेयर एक वेबसाइट है, उस पे कर सकते हैं। तो सारी ये जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं ना डिप्लॉय करने के लिए, सारे ही आपको कहते हैं कि गिटहब की रेपो हमें गिटहब कनेक्ट कर दें और गिटहब की रेपो का बता दें कि कौन-सी डिप्लॉय करनी है। वो खुद ही सब कुछ ऑटोमैटिकली डिप्लॉय करते हैं। अब ये अभी तो हमने एचटीएमएल फाइल सिर्फ वन पेजर एचटीएमएल फाइल पे पोर्टफोलियो बनाई है। आप इसको पूरी वेबसाइट भी बना सकते हैं। आप कह सकते हो कि रिएक्ट की वेबसाइट होनी चाहिए, नेक्स्ट जेएस की वेबसाइट होनी चाहिए, कोई भी आप फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हैं जिसमें फंक्शनैलिटी भी डालनी हो आपने थोड़ी-सी, जिस तरह ईमेलिंग सिस्टम और ईमेलिंग सिस्टम कॉन्टैक्ट आपको कर सके कोई इस तरह करके ना सारा, वो आप कर सकते हैं। आपको एक मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर दूँगा जिसमें अभी मैं आपको शो करता हूँ, जिसमें सारा एक डिटेल में लिखा हुआ है कि आप कौन-कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं और
किस तरह आपने इसको लेके चलना है। तो सबसे पहले आपने गिटहब की प्रोफाइल बना ली है, ठीक है। ये टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं कोड को चेंज करने के लिए, और फ्री सब कुछ आजकल फ्री ही हो रहा है। अच्छा, आपने कोड एडिटर इंस्टॉल करना है तो कर लो, वीएस कोड आप इंस्टॉल कर सकते हो, फ्री है, बहुत ईज़ी है इंस्टॉल करना। और लेकिन मैं कहूँगा कि आप कर्सर इंस्टॉल कर लें, वो बहुत अच्छा है, बहुत ईज़ी, और वो उसके अंदर ही एआई इंटीग्रेटेड है कि आप चैट आपको कॉपी पेस्ट कहीं नहीं बार-बार करना पड़ता। एक ही जगह पे कोड भी चेंज हो रहा होगा, फाइल वो खुद बनाएगा और कोड को देख भी सकेंगे आप आसानी से। अच्छा, फिर आपने गिटहब पेजेस पे डिप्लॉय कर सकते हो, नेटलीफाई पे डिप्लॉय कर सकते हो, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म। जी, एंटी ग्रेविटी भी अच्छा है, सुना है, लेकिन मैंने अभी यूज़ नहीं किया वो। मैं क्लाउड कोड यूज़ करता हूँ, यहाँ पे कर्सर बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो ये 2 हैं। या फिर अगर कोई चीज़ पूछनी हो, तो वो फिर चैट जीपीटी से पूछ लेता हूँ। तो ये 2 मेरे पास टूल्स हैं। कर्सर ये है कि कर्सर काफ़ी अच्छा है, इसमें आईडीई भी है, मतलब कोड देख भी सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, और साथ इसका एआई फीचर भी है। तो बस दैट्स इट। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप अभी भी पूछ सकते हैं चैट में लिख के, या इसके बाद भी आपने कुछ पूछना हो तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं आईपी के। और या दैट्स इट। थैंक यू एवरीवन। Thank you, Umar. It was a very crisp and nice presentation. And I think बहुत सारे लोगों को AI का यूजेज समझ में आया होगा. And जी इमरान भाई, मैं इसमें थोड़ा सा जो है ना चाइम इन करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच जी जी मिसबा, तैयबा, उमर फरूक। ये बेसिकली जो है ये आप लोगों को जो है ना एक रास्ता दिखाना था कि डिजिटली तौर पे आप अपना पोर्टफोलियो किस तरीके से होस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप जो है अपनी जो पोर्टफोलियो है, सीवी है, उसको आप यूआरएल के थ्रू लोगों को सिंपल यूआरएल भेज दें। उससे आपको क्या फायदा क्या होगा, एम्प्लॉयर को फायदा क्या होगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एम्प्लॉयर को ये समझ आएगी कि आप ऑलरेडी जो है एक गिटहब जो है इस वक्त मैं समझता हूँ कि 100% यूज हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर। तो आप इमीडिएटली एम्प्लॉयर को बता रहे हैं कि आई एम टेक्निकल। और दूसरा जो है यू आर वेल अवेयर अबाउट द टेक्नोलॉजीज। आप अपना पोर्टफोलियो जो है उसको मल्टीपल तरीके से चेंज करते हो, सीवी बनाते हो, सीवी सेंड करते हो। और जब आप अपने सपोज कर ले कि लिंक्डइन के ऊपर भी आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया है, तो लिंक्डइन में आप ये वाला लिंक दे सकते हो, ये लुक एट मी, जिसके अंदर आप फर्दर डिटेल में जा सकते हो। आपको हम ये थोड़ा सा जो है एक किक स्टार्ट दे रहे हैं कि आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, पर्सनल वेबसाइट बना सकते हो, पर्सनल प्रोजेक्ट्स को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। क्योंकि इस वक्त मुझे याद है कि कपल ऑफ इयर्स अगो यू हैव टू होस्ट द डोमेन, और उसमें वो बड़ी कास्ट है। यहाँ पे तो देखे ना, ये उमर भाई ने जो है 10 मिनट के अंदर जो है उसको चेंज कर दिया। यू यूज एआई पावर, बिल्ड योर पोर्टफोलियो, बिल्ड योर पर्सनल बिजनेस इवन, और उसको होस्ट कर दो, लोगों को ये लिंक भेजो कि दैट्स मी। ये इस वक्त जो है हर बंदे को इंपावर होना बहुत जरूरी है। और मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, जिसका लिंक्डइन के ऊपर जो है किसी तरीके का पोर्टफोलियो बना हुआ है, वो समझे कि वो 15 से 20% उसकी सिलेक्शन हो चुकी है, वो एम्प्लॉयर को मोटिवेट कर चुका है कि उससे हमें बात करनी है। सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। अब इसी तौर पे पहले हम लोग जो है सीवी बनाते थे, पीडीएफ, और ये वाला जो है इसके अंदर जो है वर्जनिंग हिस्ट्री बड़ी कमाल की है। इफ यू वांट गो बैक टू द प्रीवियस वर्जन, गिटहब उसको रिटेन करता है। सो यू डोंट हैव टू गो, लाइक यू कैन क्रिएट अ मल्टीपल वर्जन। आई विल गिव यू एग्जांपल। सपोज कर लें कि आपने 3 तरह के सीवी बनाए हुए हैं, एंड यू कैन क्रिएट 3 डिफरेंट टाइप ऑफ द पोर्टफोलियोज, एंड देन यू कैन मैनेज देयर। तो आई रियली अप्रिशिएट कि मिसबा, उमर फरूक और तैयबा, आपने जो है इसको इनिशिएट किया, इसको आपने ऑन किया। ऑब्वियसली तौर पे इसमें लोगों के क्वेश्चंस होंगे। आईपीएफ का प्लेटफॉर्म जो है वो हाजिर है, जहाँ पे हम फर्दर इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, और हम इससे बेसिकली नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, लोगों को थोड़ा सा और ट्रेन करना चाहते हैं। सो अगेन मिसबा, बैक टू यू। thank you, Nawaz bhai. And I also like to thank everyone who participated in. And this is not the end over here, ठीक है? तो हमारा इनिशिएटिव यही है, जैसे नवाज भाई ने कहा कि if in the booming win of IPIP, if they want to promote themselves and have their self branding, तो मैं और तैयबा हैं in that group to help them. And Umar and Nawaz bhai is there for the other audiences. So आप हमें अपनी प्रोफाइल, इफ़ यू मेक इट थ्रू दिस वर्कशॉप एंड यू फाइंड इट यूजफुल, तो हमको info@ipip.ir पे भेजें. We are in a process of creating a new website as well, so we'll get those profiles presented there. So it will be a win-win for both of us. You took a workshop from us, or you are being presented in our new website that's coming in. So if you have any more questions, तो please unmute करके भी बता दीजिए, because we don't see any in the chat. And if there's none, so we can close our workshop today. I'll give a minute. थैंक यू। Thank you, Ms. Black.